Hello students, good morning to all. So in the last lecture we have started our chapter number 4, business services. Under our first lecture I have told you about the meaning of the business services and what are the various types of business services. I have already told you that there are 3 types of business services which you have to be discussed and it is to be given in your syllabus, namely banking, communication and insurance. Banking, communication and insurance. In today's lecture we are starting with our first business services that is most important to you all. It is quite indispensable part of our today's life. Banking. If you see from a small business to a MNC, each and every business is in need of banking. बैंक में उन्हें जाना पड़ता है अपने पैसों को सेव करने के लिए और फॉर द ट्रांसफर ऑफ द मनी फ्रॉम वन एरिया टू अनदर और डेली ट्रांजेक्शन, जो भी उनकी ट्रांजेक्शन होती है उनके लिए उनको बैंक्स की जरूरत पड़ती है. सो बैंक्स हैं जो हमारे बिजनेस लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग. बैंक्स होते क्या हैं? कोई भी ऐसी कंपनी जो कि बैंकिंग का काम कर रही है, एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज इन द फंक्शन ऑफ बैंकिंग, दैट इज एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड lending of funds, accepting of deposits for lending of funds or for investment. In India, banks are regulated by Banking Regulation Act 1949, and that act says that any company which is accepting deposit for lending or for the purpose of investment, that are known as banking company. कि कोई भी ऐसा बिजनेस जिसका मेन काम क्या है, पैसे एक्सेप्ट करना और उनको आगे लेंड करना या फिर इन्वेस्ट करना. वैरायटी ऑफ अदर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक लाइक चेक फैसिलिटीज. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज. तो बैंक की मीनिंग के बाद हम बात करते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक. व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स. First one is commercial banks. Next is cooperative banks. Third one is specialized bank. And last one is mainly banks can be categorized into 4 categories. First one is commercial banks, second one is cooperative banks, third one specialized and last one is central bank. तो इन तीनों के बारे में बताता हूं. First one is commercial bank. Commercial, it means these banks have main motive to earn profits by accepting deposits and lending funds. What usually they do, they accept deposits from the general public and they provide interest on that deposits, and also by that deposits they lend the money to the businessmen and they do charge interest on them at higher rates as compared to the interest rate provided to the submitters. और जिन्होंने पैसा जमा करवाया था उनके कंपैरिजन में जिनको वो पैसा लेंड कर रहे हैं उनसे वो ज्यादा ले रहे हैं. देखिए मेन काम क्या है इनका, बोरोइंग, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और लैंडिंग. लैंडिंग पे सपोज इनका इंटरेस्ट रेट रहता है 12% टू 18%, और बोरोइंग जब एक्सेप्ट करते हैं पैसा लोगों से तो ये इंटरेस्ट देते हैं 3 से 7%. ये इनके जनरल इंटरेस्ट रेट रहते हैं. और जो बीच का गैप रह जाता है, तो ये गैप रह गया, देखिए 3 12 9%, 7 18 11%. तो ये बीच का गैप है, ये इनको क्या होता है, प्रॉफिट्स, इसे बोला जाता है मार्जिन. मार्जिन ऑफ
प्रॉफिट्स। तो कमर्शियल बैंक्स मेन काम क्या है? लोगों से पैसा लेना, लोगों से पैसा देना और उन पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं जिनके थ्रू ये क्या अर्न करते हैं अपना प्रॉफिट्स। इसके बारे में डिटेल में हम फंक्शंस पढ़ेंगे इसके बाद। और कमर्शियल बैंक इंडिया में एक हमारा एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, In India, commercial banks are registered under this act and operate under this act, Banking Regulation Act 1949। कमर्शियल बैंक भी आगे हम डिवाइड कर सकते हैं कमर्शियल बैंक्स को भी आगे डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। Normally you see that there are variety of banks around you like SBI, PNB, HDFC, ICICI। What is the difference between these banks? देखिए जो SBI है, PNB है, ये हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मीनिंग क्या रहता है? In which most of the stake is held by government, कि जिनमें ज्यादातर स्टेक किसका है? गवर्नमेंट का। SBI, PNB। ऐसी प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है इंडिया में, जैसे कि HDFC है, ICICI है या कोटक महिंद्रा बैंक है। अभी ये सभी कौन से बैंक है? प्राइवेट सेक्टर, जिनमें मेन जो स्टेक रहेगा वो प्राइवेट सेक्टर का रहता है। ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। आते हैं ये दोनों कमर्शियल बैंक्स के अंडर है। ये था कमर्शियल बैंक का डिटेल में मीनिंग कि इनका मेन काम प्रॉफिट कमाना बाय एक्सेप्टिंग फंड्स एंड लैंडिंग ऑफ फंड्स, जो कि उनमें बीच में मार्जिन रह जाता है, वो उनका प्रॉफिट पार्ट होता है। सेकेंड टाइप ऑफ बैंक्स आर कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक देखिए नेम से क्लियर है, कोऑपरेटिव। द मेन पर्पस ऑफ दिस बैंक इज टू प्रोवाइड फंड्स टू इट्स मेंबर एट चीपर रेट्स, कि पैसा देना है अपने मेंबर्स को चीप रेट्स पे। ये कौन से एक्ट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं? स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ये एक्ट मैं पहले आपको एक बार डिटेल में बता चुका हूं, 1912। जैसे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। आपके हरियाणा की बात करें, जींद कोऑपरेटिव बैंक है, पंजाब में संगरूर कोऑपरेटिव बैंक है, पटियाला कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ये सभी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। इनका मेन पर्पस क्या है? प्रोवाइडिंग फंड्स टू इट्स मेंबर एट चीपर रेट्स। थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक की बात करें कि स्पेशलाइज्ड बैंक होते कौन से? स्पेशलाइज्ड बैंक आर दोज बैंक्स which are specially established for a particular work. Like you have seen there are some banks which usually do only one work, जैसे एक्सिम बैंक है। एक्सिम बैंक ये बैंक एस्टैब्लिश हुआ था जस्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। नेम से क्लियर है, एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये बैंक बनाया गया, इसीलिए बोला जाता है इसे एक्सिम बैंक। ऐसे कुछ और भी स्पेशलाइज्ड बैंक हैं जो कि मेन डेवलपमेंट पर्पस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या किसी और स्पेसिफिक पर्पस, जैसे IDBI है। अभी ये कमर्शियल बैंकिंग में भी आ गया है, लेकिन जब ये फर्स्ट बना था तो इसका मेन पर्पस था सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नेम क्या है इसकी फुल फॉर्म है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सो इसका मेन पर्पस क्या था? कि इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करनी है। जब ये बना था सिर्फ उसी पर्पस के लिए बना था। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड बैंक है नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक भी एक एस्टेब्लिश किया गया था जस्ट एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये भी एक तरह का कौन सा बैंक है? स्पेशलाइज्ड बैंक, जिसका मेन पर्पस क्या है? जस्ट जो रूरल बैकग्राउंड है या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है उनको असिस्ट करना, ये इसका मेन पर्पस। तो ये थे स्पेशलाइज्ड बैंक जो कि एक स्पेशल पर्पस के लिए एस्टेब्लिश किए गए थे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा।
And the last type of bank is central bank. In every country there is one bank which manages all the banks in the country. Like USA में भी फेडरल बैंक है. In India there is also central bank which manages all the bank and supervises all the banks. And name of India's central bank is RBI, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक है, which was established under Reserve Bank of India Act 1934. RBI एक्ट था जो 1934, उसके अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ. बना कब? 1935 में एग्जिस्टेंस में आया. 1949 में नेशनलाइज हुए. नेशनलाइज 1949 में हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस. एंड एट करंट इट्स चेयरमैन इज शक्तिकांत दास. At current, its chairman is Shaktikant Das. Shaktikant Das इसके चेयरमैन है करंट में. The main purpose of Central Bank of India is to manage and supervise all the commercial banks and to issue currency for India. जो करेंसी इशू होती है वो आरबीआई के द्वारा की जाती है. रेपो रेट, जो भी रेट्स वगैरह दी जाती हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे आप, ये सारी आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है. अगर कोई बैंक कोई डिफॉल्ट कर रहा है, केवाईसी अनाउंसमेंट गड़बड़ कर रहा है, तो जो भी पेनल्टी वगैरह है वो भी आरबीआई के द्वारा इंपोज की जाती है. सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ द बैंक, नेमली कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक एंड central bank. In today's lecture we have done only the meaning of banking and types of banking. Meaning में हमने किया a bank is an organization, a banking company is an organization which do the function of banking, that is accepting of deposit and lending of funds or for further investment, and people can withdraw at any time with the help of demand और चेक फैसिलिटी और ड्राफ्ट फैसिलिटी और एनी अदर मोड, कि लोग वो पैसा निकलवा भी सकते हैं जब वो चाहें, क्योंकि पैसा किनका है? वो जनरल पब्लिक है. और उसके बाद मैंने कुछ टाइप्स पढ़ाई हैं आपको. तो ये था आज का लेक्चर. इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम करेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जिसमें आपको मैं आरटीजीएस वगैरह के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वगैरह, वो सारी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा. तो आई होप कि सभी ने आज का लेक्चर ध्यान से सुना होगा और सभी को समझ में आ गया होगा. विद दिस, थैंक यू.